Hello children, till now I have explained these accounting terms which will we use in our accountancy. So first is entity, transaction, assets. Assets had two types. First is current asset, second is non-current asset. This is the structure of assets. This is the structure of assets. Assets had two types, non-current asset and current asset. Non-current asset had different types like fixed asset, non-current investment, deferred tax asset, long-term loan and advances, other non-current assets. Current assets also like have different types like current investment, inventories, stock, also called trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loan and advances, other current assets. So assets are these of value used by the business in its operation. These called the assets. Like example, cash and bank balance, stock, furniture, machinery, etc. Non-current asset, fixed asset like land, machinery, furniture are called fixed asset. Tangible asset, intangible asset. Tangible assets are those assets which can be seen or touched, that called the tangible asset like land, building, computer, furniture, etc. Intangible asset, those assets which do not have seen or felt like patent, goodwill, copyright, trademark, etc. I have explained also patents, meaning of patents, goodwill, copyright, trademark. Capital work in progress, when a company work in process not completed, that is called the capital work in progress. Intangible assets under development, non-current investment, deferred tax assets, long-term advances, other non-current assets. Current assets, current investment, inventories and stock are same. Trade receivable, cash and cash equivalent, short term loan and advances, other current assets, capital, debtor, creditor, assets, types, fixed asset, current asset, tangible, intangible and wasting assets. Liabilities means the amount which the business owes to outsider, that is called the liabilities. Liabilities मतलब उधार. Types, long term liabilities and short term liabilities. Goods, stock or inventory also have two types, opening stock and closing stock. Profit is the surplus of revenues of a business, two types, gross profit and net profit. Loss is excess of expenses over its related revenues. Revenues means income, which may arise from normal business activity called loss. Expenses and expenditure, revenue, income, transaction, drawings, cost. Today I will explain the some. So children, today I will explain other accounting terms. First is gain. It is a profit that arises from transactions which are incidental to business, such as sale of investments or fixed assets at more than their book values. Gain may be operating gain और नॉन ऑपरेटिंग गेन. गेन का मतलब है फायदा. जैसे यहाँ पर एक डिफरेंस है, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है. प्रॉफिट का मतलब है कि जितना आपने एक अजम्पशन लगाई है किसी प्रोडक्ट को सेल करने से मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका रेगुलर होगा, उसके लिए आपके एफर्ट्स होंगे. लेकिन गेन क्या है कि गेन भी आपको फ़ायदा देता है, गेन को फ़ायदा बोलते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है, वो एक रेगुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए नहीं है, वो आपका एक सडन होगा. जब आपको जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ अ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट है, इससे भी हमें फ़ायदा होता है. दैट अराइजेज फ्रॉम ट्रांजेक्शन, जो हम ट्रांजेक्शन्स यूज़ करते हैं उनसे हमें फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस लाइक एज, कि लेकिन कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिससे हमें कभी कभी किसी चीज़ से, जैसे सपोज अगर कोई एक हमारे पास टूटा फूटा फर्नीचर है, उस फर्नीचर को मैंने अजम्पशन किया हुआ है कि ये बहुत पुराना हो गया है, चलो उसको अगर हम बेचेंगे तो वहाँ पे 2000 रुपीज़ मुझे इसके मिलेंगे. लेकिन जब मैंने उसको सेल करने की बात की तो किसी ने मुझे 2500 दे दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, इनकंडीशनल, कि वहाँ पर वो हमें अजम्पशन नहीं थी कि उसका इतना पैसा हमें मिल सकता है. तो इस तरह की अनसर्टेनिटी या फिर कभी हैपनिंग, कभी ऐसा कुछ हो जाए कि हाँ हमें
कोई चीज़ ज़्यादा की लगे या हमें कम रेट में मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गेन। लेकिन वो हमेशा कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट आपको तब मिलता है जब आप रेगुलर एक स्केल पर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको सेल कर रहे हैं और आपको पता है कि इन रिटर्निंग फॉर्म में मुझे क्या अमाउंट वहाँ पर रिसीव होने वाली है, जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर है। लेकिन जो गेन है उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है, वो आपको सडन मिलने वाला है, लेकिन वो भी कभी कभी मिलेगा, रेगुलर वो नहीं होगा। इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, लाइक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट। कि आपने कोई फिक्स एसेट बेची, सपोज एक बिल्डिंग है, उसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख की है आपके हिसाब से, लेकिन जब आपने उसको सेल किया तो आपको 2,50,000, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको क्या हो गया, गेन। तो अब आपके पास इतनी सारी बिल्डिंग तो है नहीं कि आप रेगुलर बेचते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी, कि वहाँ पर क्या है कि अचानक से वो चीज़ आपको मिलेगी और रेगुलर बेस पर नहीं होगी। एट मोर देन देयर बुक वैल्यू, कि अगर आपने बुक वैल्यू उसकी बिल्डिंग की लगाई थी कि वो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, लेकिन जब आपने उसको सेल किया तो आपको 2,50,000 मिले, तो इसका मतलब उसकी जो बुक वैल्यू थी उससे ज़्यादा आपको पैसे मिले, जो आपका गेन था। गेन में भी ऑपरेटिंग गेन और नॉन ऑपरेटिंग गेन। गेन जो है वो ऑपरेटिंग गेन की, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग गेन की, कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया और अचानक से आपको पैसा मिल गया। नेक्स्ट इज फ्रेट। फ्रेट मीन्स द कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। फ्रेट का मतलब है किराया भाड़ा, कि जो भी हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उस पर जो कुछ भी किराया लगता है लाने ले जाने के लिए, उसे हम फ्रेट कहते हैं। परचेजेस, परचेजेस का मतलब है खरीदना। द टर्म परचेजेस आर यूज ओनली फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स। जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो परचेज है। गुड्स आर दोज आइटम विच आर परचेज। किस तरह की चीज़ें हैं जो हम खरीद रहे हैं, फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यूज़ करने के लिए डायरेक्ट खरीदी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है जिससे हमें प्रोडक्शन करना है और उसके बाद हम परचेज करेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे। विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से ही बेची जा चुकी हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैश और क्रेडिट परचेज। जो हमारी परचेज है, जो हमारी खरीदारी होती है, वो 2 तरह की है, एक कैश और एक क्रेडिट। कि कभी कभी हम सामान क्या है कैश में, सपोज एक प्रोविज़न स्टोर है, प्रोविज़न स्टोर से हमने एक बिस्किट खरीदा, कैश पेमेंट कर दी, 10 हमने पेमेंट कर दिया। क्रेडिट परचेज की, वहाँ से हमारा रेगुलर जो है प्रोविज़न का सामान आता रहता है और हमने वहाँ से एक बहुत बहुत सारी चीज़ें खरीदी, तो वो क्या है, क्रेडिट परचेज की। हम जिसकी क्या करते हैं, फाइनल उसकी पेमेंट करते हैं जब हमारा लास्ट मंथ का लास्ट हो जाता है, तब हम मंथ। तो परचेज क्या है, मतलब खरीदना, किसी चीज़ को खरीदना, दैट इज कॉल्ड द परचेज। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज में बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन। किसी सामान को खरीद कर फिर उसे वापस करना, कॉल परचेज रिटर्न, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। गुड्स परचेज में बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन। लेकिन कभी जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं और अगर हमें उसे वापस करना है तो उसके पीछे एक रीज़न है, बिना रीज़न के हम वापस नहीं करेंगे, बिना रीज़न के जिससे हमने वो खरीदा है वो भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब भी गुड्स को रिटर्न किया जाता है, जब भी हम उसको वापस करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। से दे आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन और आर डिफेक्टिव, कि वो डिफेक्टिव भी हो सकता है। स्पेसिफिकेशन, सपोज आपने एक मेडिकल स्टोर से एक मेडिसिन खरीदी, मेडिसिन आपने खरीदी और वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने देखा कि भाई ये तो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या है, स्पेसिफिकेशन, कि आपने वहाँ पर उसकी जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है और अब आप उसको वापस करने जा रहे हो मेडिकल स्टोर पे। डिफेक्टिव, कि हमने सपोज कोई एक कपड़ा खरीदा, कोई क्लोथ खरीदा और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो कट हो रखा है, तो वो क्या है, डिफेक्टिव है, जिसके लिए भी हमें उसे वापस। तो इसका मतलब है कि परचेज रिटर्न, जब कोई सामान को खरीदा जाए और उसको किसी रीज़न से हम वापस कर रहे हैं जिससे हमने उसको खरीदा था, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। गुड्स रिटर्न आर टर्म एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न की खरीद करके वापस करना, या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं और कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ये यूज होता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट। इट मीन्स गुड्स ब्रॉट इन टू द कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। इम्पोर्ट का मतलब है आयात, किसी सामान किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान को मंगाना इम्पोर्ट होता है।
कि फॉरेन कंट्री, जब भी हम किसी सामान को फॉरेन कंट्री, जो बाहर विदेश से हम सामान मंगा रहे हैं, तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। ऐसे ही अगर हम अपनी कंट्री से किसी सामान को बाहर किसी अदर कंट्री में सेल करेंगे तो वो हमारा एक्सपोर्ट होगा। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस का पर्पज क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, तो इसीलिए हम अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कर रहे हैं। गवर्नमेंट लीवीज कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड, कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है किसी गुड्स को किसी भी अदर कंट्री से, तो उस पर उसको कस्टम ड्यूटी जो चार्ज है वो पे करने पड़ते हैं। Children, today I will explain a numerical question which I have given in a homework. So, which accounting terms I have used in previous videos related, I have explained a numerical question. So, look carefully. Question is, Mr. Sunrise started a business for buying and selling of stationery with rupees 5 lakh as an initial investment. यहाँ पर एक मिस्टर सनराइज हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उनका काम है बाइंग, खरीदना और बेचना स्टेशनरी को, और जिसके लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट उन्होंने 5 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट अपना लगाया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑफ विच ही पेड रुपीज़ 1 लाख फॉर फर्नीचर। अब वहाँ पर इनका जो खर्चा है स्टेशनरी में, जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो 5 लाख रुपीज़ इनका कैपिटल की, मतलब जिससे इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। इसके बाद ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, 1 लाख रुपया उन्होंने पे किया, मतलब कैश, जहाँ पर भी पेड होगा वहाँ पर हमेशा कैश होता है। पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, 1 लाख रुपया फर्नीचर के लिए पे किया। 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम, 2 लाख रुपये जो स्टेशनरी का सामान खरीदना था उसके लिए पे किया। ही एम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड कलर, अब वहाँ पर उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए, अपने काम के लिए एक सेल्समैन और एक कलर को अपॉइंट किया है। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में, ही पेड 5,000 एज देयर सैलरी, जो भी उनके पास वो आदमी है एज अ कलर, उसको वो 5,000 पर मंथ एट द एंड सैलरी पे करते हैं। आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी, जब वहाँ पर उन्होंने जो स्टेशनरी खरीदी थी 2 लाख की, उसमें से उन्होंने 1,50,000 फॉर कैश क्या किया, उसको बेच दिया। 1,50,000 की जो स्टेशनरी थी उसको सेल कर दिया। एंड सम अदर स्टेशनरी फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि, और 1 लाख रुपए की जो स्टेशनरी है वो उन्होंने किसको उधार दी है, मिस्टर रवि को। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी आइटम ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस, अब यहाँ पर उन्होंने 1,50,000 की स्टेशनरी आइटम और ख़रीदा, किससे, मिस्टर पीस से। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो हफ्ता सप्ताह के पहले, नेक्स्ट मंथ मतलब जो नेक्स्ट मंथ आया उसके फर्स्ट वीक में, देयर वॉज अ फायर एक्सीडेंट, उनके यहाँ क्या हुआ, एक आग लग गई। एंड ही लॉस 30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी, जिसमें उनका 30,000 का जो स्टेशनरी का सामान था उसका नुकसान हो गया, वो सब जल गई। अ पार्ट ऑफ द मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹45,000, उनके पास कोई एक मशीन थी पुरानी जिसकी जो कॉस्ट थी वो 40,000 थी, वो सोल्ड फॉर ₹45,000, लेकिन जब उसको उन्होंने बेचा तो उसकी वैल्यू 45,000 की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टर सनराइज हैं जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा और 2 लाख रुपए का जो स्टेशनरी का सामान था उसको खरीदा। इसके बाद इन्होंने एक एम्प्लॉय अपने पास रखा हुआ है अपने सपोर्ट के लिए, जिसको वो 5,000 पर मंथ सैलरी पे करते हैं। जितनी भी स्टेशनरी उन्होंने 2 लाख रुपए की खरीदी थी उसमें से 1,50,000 की स्टेशनरी उन्होंने कैश में बेच दी। सम अदर स्टेशनरी 1 लाख रुपए की अब उन्होंने फिर से खरीदी मिस्टर रवि से उधार में। ही बॉट स्टेशनरी आइटम, फिर अब इन्होंने किसी एक मिस्टर पीस से स्टेशनरी का सामान 1.5 लाख रुपए का और ख़रीदा। तो यहाँ पर इसके बाद एक उनके एक्सीडेंट हुआ, मिसहैपनिंग हो गई मंथ उसी ड्यूरिंग टाइम पर, और 30,000 का स्टेशनरी का जो सामान था वो जल गया। एक मशीन उन्होंने बेची जिसकी कीमत 40,000 थी, लेकिन जब उसको बेचा तो यहाँ पर उनको फ़ायदा हुआ, इट इज़ गेन। यहाँ पर उनको अचानक से 40,000 की मशीन के बदले में 45,000 रुपीज़ मिले हैं, तो इसे हम गेन कहेंगे।
प्रॉफिट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे और ना ही उनका कोई एफर्ट था 5,000 के एक्स्ट्रा मनी के लिए, लेकिन वो उनको अचानक से मिला, तो यही गेन है। सो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्ट बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर सनराइज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने पैसे से, 5 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया जो उनकी कैपिटल है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फिक्स एसेट ही बॉट। अब उन्होंने अपने बिजनेस के लिए कौन सा फिक्स एसेट खरीदा, उन्होंने फिक्स एसेट खरीदा फर्नीचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो भी सामान 1 साल से ज़्यादा के लिए काम करता है उसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। मोर देन 1 ईयर जिसकी वैल्यू है 1 लाख का इन्होंने यहाँ पर फिक्स एसेट खरीदा, तो इसका आंसर है फर्नीचर ₹1 लाख। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज। अब इन्होंने कितनी वैल्यू का सामान है जो स्टार्टिंग पे खरीदा था, तो स्टार्टिंग में 2 लाख का स्टेशनरी का आइटम इन्होंने खरीदा था, ₹2 लाख स्टेशनरी आइटम। हु इज़ द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू इन। क्रेडिटर कौन है इन जिससे इन्होंने उधार लिया है, वो कौन है, वो है मिस्टर पीस, और जिससे उन्होंने 1,50,000 का जो स्टेशनरी आइटम है वो और परचेज किया है। वॉट आर द एक्सपेंसेस, इनके पास खर्चा क्या है, 5,000 रुपीज़ का इनका एक्सपेंसेस है जो अपने कलर को एज ए सैलरी पे करते हैं। वॉट इज़ द गेन ही अर्न, 5,000 का यहाँ पर इनको गेन हो रहा है, कैसे, जब इन्होंने एक 40,000 की मशीन को बेचा, 45,000 उनको रिसीव हुए, यहाँ पर 5,000 का वो इनका गेन बन गया। वॉट इज़ द लॉस ही इनकर्ड, वहाँ पर लॉस क्या है इनका, इस पूरे केस आइटम में, केस स्टडी में लॉस क्या है, कि लॉस है कि जब उनकी शॉप में आग लगी तो 30,000 का जो स्टेशनरी का सामान था वो जल गया। हु इज़ द डेप्टर, इनको पैसा कौन देगा, रवि, जिसको इन्होंने सामान बेचा है। व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम, कितना पैसा उससे मिलेगा, 1 लाख रुपीज़। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेज इनकर्ड, कि जो टोटल अमाउंट खर्चे का है वो 5,000 रुपये है जो वो खर्च कर रहे हैं एज ए सैलरी, और लॉस कितना है, 5,000 रुपीज़ उनका लॉस है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अमाउंट है हमारी 35,000। Determine if the following are assets, liabilities, revenues, expenses, or none of these. Sales, debtor, creditor, salary to manager, discount to debtor, drawing by the owner। यहाँ पर हमें बताना है कि इन सारी टर्म्स में एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, या हमारी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस कौन कौन से। सो फर्स्ट इज सेल्स, क्या है हमारे, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है इनकम, लेकिन मैंने बताया था कि रेवेन्यू में हम उसी इनकम को, दैट ऑल्सो कॉल्ड रियल इनकम, कि जिसमें हम अपनी सेल या फिर सर्विस को यूज़ करते हैं, और इन्हीं दो सोर्सेज से जो हमें इनकम मिला, जो पैसा मिला, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू। डेप्टर्स वो हैं जो हमें पैसा देंगे, तो वो क्या, जब हमें पैसा देंगे, अगर हमें बैंक में चेक देंगे तो वो भी हमारी एसेट है, हमें कैश में अमाउंट पे करेंगे तो भी हमारी एसेट है, तो ये हमारी एसेट है जहाँ से हमें पैसा मिलेगा। क्रेडिटर का मतलब जिन्हें हमें पैसा देना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, जिनका पैसा हमारे ऊपर उधार है वो हमारी लायबिलिटी है। सैलरी टू मैनेजर, एक जो मैनेजर है जो कलर का पॉइंट किया है उसको जो सैलरी हम दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट टू डेप्टर, हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं डेप्टर को वो भी हमारा एक्सपेंस है। ड्राइंग बाय द ऑनर, जो ड्राइंग यूज़ कर रहा है ऑनर अपनी फर्म से, जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर कोई स्टॉक में से सामान यूज़ कर रहा है या पैसा निकाल करके खर्च कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। वो भी फर्म के ऊपर क्या है, लायबिलिटी, कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको वो वापस करनी पड़ेगी। सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर योर रिविजन, विच द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, विच द अकाउंटिंग टर्म्स हाउ वी विल बी यूज इन अ क्वेश्चन, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन अदर सम अकाउंटिंग टर्म्स in again in other videos, 1 or 2 3 videos I have also explained the accounting terms, because these accounting terms has a basic, and which these accounting terms you should be knowing very well. So children, you should be remember and you should be learn this term again and again, and if you have any problem you can ask me anytime. So take care children and goodbye.